Very good morning to all of you, beta. We are going to start with the second chapter, that is chemical bonding. Okay, right? Now, chemical bonding, every element will try to attain electronic configuration of whom, beta? Yeah? Every element will try to attain the electronic configuration of nearest noble gas. Why they will try to attain the electronic configuration of nearest noble gas? Because to become stable. What do you mean by to become stable? ऑक्टेट, तो ऑक्टेट करने से क्यों वो स्टेबल हो जाता है? ओके, राइट। हाँ, तो बेटा वो आपको नहीं सिखाया गया अभी तक। Every element will try to attain the lower energy state. If it is only sodium and only chlorine, their energy level is very high. But when it forms NaCl, its energy level decreases. Okay, but nobody will ask that. But this is the basic thing. Otherwise, sodium is an element, chlorine भी element है. Okay, atom neutral है. They should not react only, ना बेटा. Okay. So now tell me, beta, if you see this sodium, who's the nearest noble gas to sodium? So it want to become like neon. So what it will have to do? Okay, who's the nearest noble gas to chlorine? So it wants to become like argon. So what it will do, beta? Okay, so sodium will give away its one electron to whom? Argon, chlorine. ठीक है ना बेटा? Right? चलो बेटा. Now the good thing is what beta, in your 10th grade beta, you do not have orbit structure. You have only which structure? Dot and cross. So look beta, if I'm taking sodium chloride, so sodium is that electronic configuration is how much beta? 281. Chlorine is how much? So sodium will wants to lose one electron, so it will lose one electron. देखो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएगा, देखो गया कि नहीं? इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस. इस पे क्या आ जाएगा? प्लस. फिर से देख लो बेटा. ओके. अच्छा, now what it has formed? Sodium ion. Positive ion are known as cation. Chloride ion. Negative ion is known as anion. So there will be electrostatic force of attraction or not between them. Then how this bond is formed? Due to gain of electron, loss of electron, transfer of electron. Can I say, look, one electron is getting transferred or not? Tell me. So this, and since ions are held together, therefore it is known as ionic bond. Why it is known as electrovalent bond? Because electrons are transferred. Is this clear? But in exam, they will ask you to draw dot structure. So you will draw as the way I given to you in your notes. Now, whenever beta, there are two different elements, then electron should be shown in different way. Metal ka, how we have shown beta 281. So it should be shown with the help of what? Cross. Chlorine is 287. So we have shown only the outer electron, 7. Can you see? Now, in exam, beta, you have to draw as it is. This one electron will go, this you have to show this arrow. Now, what most of the students do mistake, beta, they forget to write this. Na1 plus charge, ये बताने का. Okay? Okay, U1, but यहाँ pay attention. Okay, here 1 minus. और यहाँ पे देखो इसका cross आ गया कि नहीं? Tell me. अच्छा, and here you have to write all this. You the students forget to write this electron. This is electronic configuration of sodium ion. This is electronic configuration of chloride ion. And Na plus and Cl minus will become what? Is this clear? Here, how transfer of how many electron is taking place? Only one. Only one. So in exam, you will have to draw the dot structure only. Okay, dot and cross structure. Now I'm giving you sodium, calcium oxide. Calcium, what is the atomic number? Shetty, Shan, tell me 20. So 282. Oxygen is 2,6. So how many electrons this calcium wants to lose? And oxygen want how much? 2. So there will be transfer or not? Tell me. Okay, it has lost 2. So it will develop 2 plus. This will develop 2 minus. Okay, but we have to draw what? Dot structure. What structure? अबे चलना. So look here, electron dot cross structure. Hey, calcium, if you see, we have to draw only outer electron. Can you see this? Oxygen, there are how much? 6. So we have drawn only 6. These two arrows are very important. So here, calcium is lost. So calcium ion, what is the electronic configuration? Oxide is how much? And can you see the octet is complete? And then you have to write calcium oxide. Here, transfer of how many electron? Acha, now generally, beta, if you see, the one which donates electron, it is what, beta? Metal. This is what? Non-metal. Metal, and here also this is what? Metal. And this is what? Non-metal. I want you to write this metal and non-metal here. Acha. I say, yeah, extra. I'll make you write many things in the notes which are given to you today. Okay. Right.
metal and non-metal. Okay, Yuan, how we are going to define this? The bond which is formed due to transfer of how many electron? Here it is one electron. And here how many electron are there? Two. So can I say the bond which is formed due to transfer of one or more? More की बोला भी समझ में आ गया? One or more. One or more. Are you getting it? Why I said one or more? From which element? Hey, this is what? Metal ना? So from metallic. अच्छा metal ने कौन सा आयन बनाया? Positive, positive. So yeah, so metallic electropositive element to whom we have transferred non-metallic. It form which ion? Negative ion. So non-metallic electronegative element is known as which bond? Electrovalent bond or ionic bond. So bond which is formed due to transfer of one or more electron from the metallic electropositive element to the non-metallic electronegative element is known as electrovalent bond or ionic bond. Look here. Dun, dun, dun. The chemical bond form as a result of transfer one or more. अब समझा कि नहीं? From which element? Metallic. To non-metallic. Is this clear? Okay, now we go to the next part. Definition का एक एक वर्ड मैंने आपको समझा दिया. Now we go to the next part. चलो. क्या नाम है बेटा तेरा? अद्वैत. अद्वैत ना बेटा? अद्वैत बेटा, hello. Now look, I have given you here magnesium chloride. Magnesium atomic number is 282. But chlorine is 287, 287. Magnesium wants to lose how many electron? Two. But one chlorine can gain only one. So how many chlorine I'll have to use? Two. So now can you see these two electron will get transferred? Okay. Chalo. Look. So now what will happen? This magnesium 2 electron will go here. Can you see? Right? So magnesium will develop what? 2 plus and 2 chlorine will develop 1 minus 1 minus each. Now here you have to be very careful, beta. In exam, students go wrong in this particular diagram. So look, you have to be very careful. What you will write first? Magnesium atom to it. You will draw 2 chlorine separately. One electron will transfer here, one will you transfer here. Now magnesium has lost how much? So this square bracket and this 2 plus should be there. And here can you see how many chloride? This one chlorine ka octet is complete. So how many chlorine are here? Two. So 2 and MgCl. So this is also what beta? Metal, and this is what? Non-metal. So electrovalent bond is always formed between metal and non. How it is formed due to transfer of electrons. What are held together? Ions are held together. Oppositely charged ions are held together. Clear? Okay. So this was all about. Acha, now beta, there is one new term which we have not studied in your lower standard. Here we are going to study something which we call as electrovalency. What? Electrovalency. Now, Shania, beta, you tell me. Here, sodium has lost electron from where? Which shell? Outermost, valence shell. Chlorine has gained electron in which shell? The outermost shell. So what is electrovalency? It is the number of electron lost or gained. By which shell? By valence shell of an atom. To attain what configuration? Stable electronic configuration. Is known as what? Electrovalency. So the number of electron donated or accepted by which shell? So as to achieve which configuration? एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, स्टेट द टर्म एंड देन दे विल राइट दिस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड और एक्सेप्टेड बाय द वैलेंस शेल so as to achieve stable electronic configuration. So what is this term? What will be your answer? Electrovalency. Is this clear to all of you? Hello. Right, beta. Clear? Any difficulty till here? Okay. Now, Boka. Look here. What we are going to do, beta? Here I have what? Hydrogen. What we have, what, beta? Hydrogen, beta. Hydrogen, beta. If you see, how much is the atomic number? One. Hydrogen metal है या non metal है? Non metal. तो बेटा ये भी लेफ्ट में भी एक हाइड्रोजन है, राइट में देयर इज वन हाइड्रोजन. व्हाट दे विल डू बेटा? हाइड्रोजन नियरेस्ट नोबल गैस इज विच वन? हीलियम. सो हीलियम के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होता था? 2. तो इसको और कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? ऑलरेडी 1 है. इसको और एक चाहिए कि नहीं? इसको भी और एक चाहिए कि नहीं? तो ना व्हाट दे विल डू? दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर. एंड व्हाट दे विल डू बेटा? दे विल लेट बेटा ऐसा दिखाई ये यहाँ पे देख हीरो.
ये देख रहा है बेटा। अच्छा, अभी लेफ्ट वाले का डुप्लेट कंप्लीट हो गया कि नहीं? राइट वाले का डुप्लेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, बोलो। Whenever one pair of electron is shared, we will put single dash. We call it as single covalent bond. What we will call it as? अच्छा, एग्जाम में और एक क्वेश्चन क्या आएगा? हाउ मेनी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन? वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इज दिस क्लियर? हेलो, राइट। So I want all of you to come here. Look, and हाइड्रोजन दिखा के नहीं, बोलो। वन वन, कैन यू सी दिस? अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगर, ओ वन वन लिखना हम भूल गए, लिखो वन वन। फिर देखिए, इन वन शेड, तो वन शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन हैज व्हाट बेटा? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। प्लीज राइट दिस। ऑनलाइन स्टूडेंट, आप लोगों का नोट्स हम किसको दे? आर्यन, अच्छा मेहर आया, गिव इट टू यू। आर्यन नेक्स्ट क्लास में ध्या- लेके जाएगा। ध्यान को दे दो सर। ध्यान ही नहीं आया ब्रो। तुम लोग दोनों पिकनिक पे गए हो ब्रो। तो फिर सर 11 o'clock को जो बैच आएगा उनमें से दे देना, रुवीर या श्लोक को। किसको? रुवीर या श्लोक को दे देना। वेडनेसडे को नहीं आता यहाँ पे? नहीं। हाँ, ओके। मेरे को बता देना, नाम मैसेज कर देना, मैं ठीक है। ओके ओके, सर। आई गिवन बोर्ड बुकलेट टुडे, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ए भाई, सुले भाऊ, सुले नहीं, क्या नाम है एकदम, भाटिया युवान। अबे देख, भाटिया बेटा इधर आ जा। Now we are going to go for whom? Chlorine. Chlorine, beta, atomic number is what? Wait, 7. Who is the nearest noble gas to chlorine? R1। तो इसके बाहर कितना है? 7 है। इसके बाहर भी कितना है, बोलो? 7। कितना होना चाहिए सबके बाहर? 8 8 होना चाहिए कि नहीं? व्हाट दे विल डू? कम ऑन, बोथ आर नॉन मेटल ना, तो नॉन मेटल व्हाट दे डू बेटा? ये देख, ऐसा देख, 8 8 हो गया कि नहीं? अच्छा, हाउ मेनी शेड पेयर? ए अद्वैत बेटा, इकडे बघ, तुम्ही बघितलं नाही काय करतोस राजा, हे बघ असं, बरोबर? राइट, 8 8। अच्छा बेटा, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, हमने शेयर्ड पेयर वन। अच्छा ना बेटा, यहाँ पर है ना, अगर आप गौर से देखो, ए भाटिया, यहाँ पे देखिए, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग में गया क्या? ये वाला बॉन्ड बनाया इसने? नहीं। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? लॉन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर। व्हाट इज लोन पेयर? इट इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बेटा ये बोर्ड में नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये वाला क्लोरीन वाला, बट जमुना बाई के प्रीलिम पेपर में आया था कि क्लोरीन मॉलिक्यूल हैज हाउ मेनी लोन पेयर? हाउ मेनी लोन पेयर? काउंट करो। ए हीरो भूतानी, कितना है? 1 2 3 4 5 6। सिक। 6 लोन पेयर। तभी आप इधर पे आ जाइए ना। तो ये मैं आपको खाली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखवाऊंगा। नाउ कैन यू सी दिस? दिस इज क्लोरीन 7 7। कैन यू सी वन शेयर्ड पेयर? देखिए, आई गिवन हियर, एंड वन शेयर्ड पेयर मीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बट यहाँ पे आप एक्स्ट्रा क्या लिखोगे बाजू में? हाउ मेनी लॉन पेयर? 6 लॉन पेयर लिख लो। राइट इट बेबी। 6 लॉन पेयर। 6 लॉन पेयर। हेलो, 6 lone pair. Is this clear? ओके। ये धियान क्या मतलब, आज बीमार बीमार है क्या कुछ? कौन आता है धियान के साथ? तू आता है ना बेटा? अकेला आता है? लोनली, मिस्टर लोनली इज लोन पेयर इज, चलो बेटा, लोन है कि पैर भी है? सर ये एनीवे, कोवैलेंट है ना। हाँ तो कोवलेंट ही है ना भाई। अरे हेडिंग क्या है अपना हीरो, ये देखो ना, कोवलेंट मैं बताऊंगा, डेफिनेशन पे आऊंगा, लेकिन आप देख रहे हो ना शेयरिंग हो रहा है कि नहीं? द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू व्हाट है हीरो? द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग। शेयरिंग इज व्हाट बेटा? कोवलेंट। ओके, चलो बेटा आ जाते हैं नेक्स्ट वन। कम ऑन, अदिति भट्ट, इधर पे आ जा बेटा। ये देखो, ओहो, यहाँ पर आ जा बेटा। वो ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर? 8, so 2 comma 6, how many electron are here? 6, here also how much beta? So they will come closer, right beta? Each of them require how much? 2 electrons, so look beta, they will come close, oh my god। अच्छा बेटा, इसमें पूछेगे बेटा how many shared pair, तो क्या बोलोगे बेटा? 2। अच्छा, एक शेयर्ड पेयर के लिए एक कोवेलेंट होता है, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो क्या बोलने का? डबल कोवेलेंट। एमसीक्यू में पूछेगे ऑक्सीजन है विच बॉन्ड, तो ऐसा मत लिखना 2 सिंगल, क्या बोलोगे? डब। ये क्या था तुम्हारा, ये बॉन्डिंग में गया क्या? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? लॉन पेयर। ऑक्सीजन है हाउ मेनी लॉन पेयर?
तो इधर पे आ जाइए ना बेटा, नोट्स में देखिए ना। ढन ढन। लो बेटा, ये देखा, दिखाई दे रहा है, टू शेयर पेयर। देख, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट हुआ कि नहीं, बोलो। अच्छा, इफ दे इन एग्जाम, इफ दे से विच बॉन्ड, डबल कोवल, एंड इफ दे आस्क बेटा हाउ मेनी लोन पेयर्स, फोर लोन पेयर। लिख लो ये फोर लोन पेयर। ओह सो स्मार्ट। दोनों जन स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हो, कुछ ऐसा मैचिंग मैचिंग ऐसा नहीं? चलो बेटा, आगे बढ़े क्या? ओ, इंगुली, प्रिशा इंगुली। Okay, Prisha. Now we are going to go for what? Nitrogen. Can you see nitrogen atomic number is 7. So how much it will be? 2 comma 5. Right, beta? So this also need 3, this also need. So they will what? Share. How many pair they are sharing? हाँ, तो एग्जाम में पूछेगा how many shared pair? 3. And if they say which bond, triple covalent. 3 सिंगल मत लिखना। अच्छा बेटा, ये पूरा ये क्या हो जाएगा? पैर हो जाएगा ना, लॉन पैर। ये भी क्या हो जाएगा बेटा? एक पैर बन जाएगा। हाउ मेनी लॉन पैर? टन टन। ये सब में लिखना मत, कहाँ कहाँ पे मैंने दिया है बेटा, डोंट यू वरी। नो बेबी, ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे बना चुकी है बेटा, दिखाई दे रहा है। ओके, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे खाली क्या लिखोगे बेटा? टू लॉन पैर, टू लॉन पैर। ये आर्यन, तेरे को जब नोट्स मिलेगा ना, तो किसी के साथ एक फोटो ले लेना और ये सब मिसिंग पार्ट लिख लेना तो। ओके सर। चलो। Advait, have you understood this, beta? Now, all of you, if you see this, ए, यहाँ पे देख, थ्रिशा, ओके। अभी यहाँ पर देख बेटा, ये क्या था बेटा? दोनों नॉन मेटल, नॉन मेटल, नॉन मेटल। तो ये सब क्या होता है? नॉन मेटल, नॉन मेटल। अच्छा बेटा, यहाँ पे बॉन्ड कैसे बना? बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू शेयरिंग ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन व्हाट? नॉन मेटल्स। बराबर है ना? नॉन मेटल के बीच में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कोवेलेंट। अच्छा, तो देखना, केमिकल बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ एटम्स ऑफ विच एलिमेंट? नॉन मेटालिक एलिमेंट। इज दिस क्लियर? बोलो ना। या, सारा का सारा इधर आ जाओ ना। सारा बेटा इधर आ जा बेटा, इधर पे। सारा बेटा, मीथेन, तो कार्बन एटॉमिक नंबर इज हाउ मच? 6। ए, पे टेंशन यार बुटा। ये देख, 2,4। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर यार? 4। हाइड्रोजन का कितना है? 1 1। कार्बन को कितना चाहिए? 4। हाइड्रोजन को कितना चाहिए? ईच हाइड्रोजन रिक्वायर्स हाउ मच? 1। सो दे विल कम क्लोजर ब्रो, एंड दे विल शेयर। लुक हाउ दे विल शेयर, लाइक दिस। So how many shared pair are there total? 4. But how many bonds it is forming? 4 single core. Don't write 4 tetra. 4 single core. आ जाइए ना। अभी आप बोलोगे सर आपने ऐसा क्यों किया है? पहली बार आप देख रहे, आर दे द सेम एटम और डिफरेंट एटम? डिफरेंट ना, तो इसलिए एक का क्रॉस बताया और एक का, ये देखो, हाइड्रो, एक कार्बन का रेड वाला दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, दिस साइन बनाने की जरूरत नहीं है बेटा, ये ठीक है ना बेटा? ये तो मैंने ऐसे ही बताया। तो how many? 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इज दिस क्लियर? इसमें एक भी लोन पेयर क्या था क्या? नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। लकीले दिख रहा, नो लोन पेयर। सर मीथेन। ये जो डायग्राम होता है वो पेन से बनता है कि पेंसिल? पेन से ही बनाना है, सब डायग्राम पेन से बनाना है। ऑल डायग्राम विथ पेन, दिस नहीं, हाँ, पेन ओनली। इसमें क्या कुछ है क्या? ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना बेटा, ऑल विथ पेन। ओके, चलो बेटा, आ जाते हैं नाउ या। यस बेटा, क्या नाम है इसका बेटा? शौर्य। शौर्य बेटा, look here, we are going to go for the next one beta. If you see here what I have, carbon tetrachloride, carbon atomic number is 2,4. So this pink one, can you see it is carbon? How many chlorine I have here? 7. Outermost electron. So how many chlorine? 4. So now they will come closer to each other. Look, 2 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
Oh, how many bond it is going to pair? Single, 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 four single covalent. बट बेटा अब मुझे बताओ ये क्लोरीन पे कितना लोन पेयर है? ए बोलना। थ्री। तो थ्री, 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 तो how many lone pair? So in exam if they ask you, ये पूछते नहीं है लेकिन कोई कोई स्कूल के प्रीलिम में पूछा था, कार्बन टेट्रा क्लोराइड how many lone pair? 12 lone pairs. Please write it. Okay. चलो। कृष्णन ना बेटा। ओके। कृष्णन बेटा, I want you to look into this. Okay, we are going to go for watcher. Watcher, beta, oxygen is, this is error here, beta. मैं तुम्हारे में correct करके दिया मैंने. Oxygen atomic number is 8, so 2, 6. How many electrons are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Each hydrogen 1, 1. So now they will come close to each other. So close. Oh, share हो गया कि नहीं? अच्छा, सिंगल तो इन वाटर मॉलिक्यूल व्हाट यू विल से इट हैज डबल कोवेलेंट और टू सिंगल कोवेलेंट? टू सिंगल कोवेलेंट एंड हाउ मेनी लॉन पेयर्स? हाँ अच्छा, जिसका मैंने दिया हुआ है वो जनरली बोर्ड में, मतलब बोर्ड के स्कोप में आता है बेटा, दिया हुआ लिखा हुआ, लिखी नहीं क्यों रे, दिया हुआ है बेबी, दिया हुआ है, देखो ना, ऐसा क्यों करते हो? यहाँ पर देखिए ना मैडम जी, ये देखो, दिया है टू लॉन पेयर्स and two single covalent bond. Clear है? Yes. Oh my God, bro, I'll come to that. वेरी गुड, आपकी नजर निर्मा सुपर बेटा, वेरी नाइस। ठीक है बेटा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि ना किसी ने, आप लोग ने देखा नहीं ध्यान से, वहां पे मैंने कुछ लिखा हुआ था पूछना हो, लेकिन पूछा ही नहीं ना आप लोगों ने। वेरी बैड, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था सबके आगे, इसके भी लिखा हुआ था। चलो बेटा आ जाते, डोंट वरी, वो सब में बताते, डोंट वरी। ये आजा, शियोन, शियोन, Asher gang. Yeah. Ammonia. Nitrogen atomic number is how much? So 2, comma 1, 2, 3, 4, 5. Clear, beta? Yes. Now they each hydrogen they will come close to each other and what they will form? अरे यार क्या हो गया भाई? आजा, आ जाओ ना, ये देखो, आ जाओ, करीब आ जाओ, ये देखो। सो अच्छा है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा अमोनिया है हाउ मेनी बॉन्ड्स, तो क्या बोलेगा? हाँ, थ्री सिंगल कोवैलेंट एंड व्हाट इज दिस? लॉन पेयर। हाउ मच? वन लॉन पेयर। तो आ जाए, व्हाट इज लॉन पेयर? इट इज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। क्लियर है ना बेटा? तो अभी इधर आ जाइए ना बेटा, यहाँ पर है ना, खाली ना आप ऐसा साइड में ऐसा जगह है, पूरा गांव बस सकता है, नाइट्रोजन ऐसा लिखो ना, 2,5। सो सॉरी, आई फॉरगॉट टू राइट इट हियर। तो देखा, ये बल्लू वाला कौन है? नाइट्रोजन। एक एक हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ, लिख मत ना, लिखना मत, दिविचा इवन लोन पे इज गिवन। ओके, इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ तो बेटा ये सब मैंने आपको बता दिया बेटा। ओके, अभी है ना, आप लोग ने, आपको है ना, दो तीन चीजें आपको बतानी है मुझे। सबसे पहला हमको क्या करना है यहाँ पर? ओ माय गॉड, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, पोलार, और क्या लिखा है? नॉन पोलार। ओ हो, अभी बेटा यहाँ पर आ जाते, कृष्णन बेटा, इफ यू सी हियर, बेटा ये मैं हूं, ये मेरा जुड़वा भाई है। यहाँ आएगा ना बेटा इधर? हम दोनों के बीच में बेटा टग ऑफ वॉर हो रहा है, हम दोनों सेम हैं, तो ये नॉट कहाँ पे भी शिफ्ट होगा क्या? दोनों सेम है तो बेटा, नहीं ना? ठीक है, अभी आ जाते इधर, टन टन। तो दिस नॉट विल बी व्हाट? इक्वली शेयर्ड और नॉट इक्वली शेयर्ड हो रहा है, क्या हो रहा है बोलो? इक्वली शेयर्ड, बराबर। चलो,
अब इधर आ जाते टन टन टन। ये एक्स है, ये कौन है, वाई है। इन दोनों के बीच में टग ऑफ वॉर हो रहा है। तो आप मुझे बताओ, ये जो शेयर, ये शेयर नॉट है, किसकी तरफ शिफ्ट होगा, वाई। इट इज स्ट्रॉन्ग ना बेटा। टन टन। बट बेटा एक्स भी एंड में रेस हार जाएगा, बट वो उसको पकड़ के रखेगा, छोड़ देगा क्या रोप को। तो क्या ये कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है क्या, नहीं। क्लियर है। अच्छा अभी कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, कुछ याद आ रहा है। हेलो, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू पुल, शेड, टेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन इट्स कंपाउंड और कंबाइंड स्टेट इज नोन एज व्हाट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कभी नाउ वेयर द इलेक्ट्रॉन, नाउ इमेजिन दिस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर, hey this is what, U1, this is an electron pair, so it has shifted। पूरा ट्रांसफर हुआ है क्या, नहीं। तो इलेक्ट्रॉन इज नाउ स्पेंडिंग मैक्सिमम टाइम विद whom बेटा, y। तो y विल डेवलप विथ चार्ज, पार्शियल नेगेटिव। पार्शियल, पूरा क्यों नहीं हुआ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पूरा ट्रांसफर नहीं हुआ, इट इज जस्ट व्हाट बेटा, इट इज मूव टूवर्ड, शिफ्टेड। वेट ना बेटा, थोड़ा देखे। अच्छा इससे दूर हो गया कि नहीं, तो इस पे कौन सा चार्ज बनेगा, तो यहाँ पे इक्वली शेयर्ड है या अनइक्वली शेयर्ड, बोलो, अनइक्वली। बराबर है। अच्छा इस पे दो चार्ज बन गया कि नहीं, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव, तो कितना चार्ज वाला पोल बना है, बोलो बेटा। तो देखो ना, दो पोल बना है कि नहीं, बोलो। दो पोल बना के नहीं, पॉजिटिव पोल है नेगेटिव पोल, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं, हाँ। और यहाँ पे क्या रहा था, इक्वली शेयर्ड है, तो यहाँ पे कोई पोल बोल बना है क्या, नहीं ना। कोई चार्ज हुआ है क्या, नहीं ना, तो नॉन पोलर। तो यहाँ पे क्या हो रहा था बेटा, नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, नो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलो बेटा, हाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इज दिस क्लियर, हेलो। चार्ज, अच्छा लेकिन अभी ये बॉन्ड बनने अभी शेयरिंग वाला ही बना है बेटा, शेयरिंग वाला ना, ये बॉन्ड कृष्ण बेटा, ये बॉन्ड बनने के लिए क्या होना जरूरी है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई डिफरेंस इन। तो बेटा इसको कहते हैं पोलार कोवेलेंट, और इसको क्या कहते हैं, बोलो बेटा, नॉन। तो बेटा अभी आपको यहाँ पर आ जाओ बेटा, फर्स्ट पेज में ही बेटा, अगर आप यहाँ पे देखोगे लेफ्ट और राइट में लिखा हुआ कुछ है बेटा, पोलार वर्ड लिखा हुआ है, और क्या लिखा है, a covalent bond are said to be non-polar when the shared pair of electron is what, यहाँ पे चार्ज सेपरेशन होगा क्या, इल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलो बेटा, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलो। अभी आपके दिमाग में आएगा, सर हमको कैसे पता चलेगा विच इज पोलर एंड विच इज नॉन, विच इज पोलर एंड विच इज। तो बेटा अभी मैं आपको एक ट्रिक दे देता बेटा, ओके। अभी मैं आपको ट्रिक दे देता हूं, क्या है, हेड, सुन लो अच्छे से, हेड फोन का स्पेलिंग मैंने चेंज कर दिया, हेड फोन कॉल, क्या लिख दिया मैंने, हाँ हेड फोन कॉल, ए ए एच, हेड। ए एच और एफ के बीच में क्या बनेगा कभी भी, एच एफ बनेगा कि नहीं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ओके। ए एच और ओ कौन सा कंपाउंड बनाता है, एच और ओ, पानी पानी पानी, दिल भी सानी, वाटर, ठीक है। एच और एन क्या बनाएगा, बोलो, अमोनिया। एच और ये क्या बनाएगा, अमोनिया। और एक कॉल मतलब सी एल, कॉल मतलब क्या होता है, तो एच और ये दोनों क्या बनाएगा। तो पूरे टेंथ के सिलेबस में कितने पोलार लोग हैं आपके मॉक सिलेबस में, बस ये चार ही पोलार है, कौन कौन है, एच एफ, एच टू ओ, अमोनिया एंड, यहाँ पे दिया हुआ है देख लो ना। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, ये जो इसके और इसके बीच में जो गैप है, उसमें आप ये हेडफोन कॉल लिख दो बस। इसके अलावा कोई भी होगा तो क्या लिखोगे, नॉन बोल, खाली हेडफोन कॉल ही है बेटा। यस आदिति भट्ट डियर, प्लीज राइट ना डियर। ओहो, चलो हे,
और ठीक ओनली है। पार्शियल चार्ज क्रिएट हाँ होता है क्या? पार्शियल होता है क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर नहीं हुआ, वरना तो आयन बन जाता है ना बेटा, यहाँ पे आयन नहीं बनता है। सपोज तो फिर बेटा आप अगर ऐसे मैं बताता एच और सी एल, एच सी एल के बीच में तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है ना भी, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस विल डेवलप पार्शियल पॉजिटिव, अच्छा। राइट। ओके। क्लियर। अच्छा एग्जाम में टर्म आएगा, इफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड विच बॉन्ड इट विल बी नॉन पोलर। खाली कोवेलेंट बॉन्ड लिखोगे तो अंडा मिलेगा, क्या लिखने का, नॉन पोलर। बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोलर कोवेलेंट। ओके। पूरे लाइफ में कितने हैं पोलर तुम्हारे 10th के सिलेबस के लिए, क्या है बोलो बेबी, हेडफोन कॉल। हाँ याद रहेगा। क्लियर है। अर्जुन सिंह, अभी एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा देख। मैं आपको है ना ऐसा तीन ये यहां से दे दूंगा, तीन यहां से दे दूंगा और एक यहां से एग्जांपल दे दूंगा, मैं एमसीक्यू में पूछूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर। हाँ या तो फिर मैं कैसा क्वेश्चन पूछूंगा बोलो बेटा, तीन एग्जाम्पल मैं यहां से दे दूंगा और एक एग्जाम्पल मैं यहां से दे दूंगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। ये भूतानी क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसा आता है साहब, क्लियर है। ऐसे एमसीक्यूज आएंगे। ओके बेटा। Yes, Aditi, Bitu, what are you trying to search? What are you trying to explore? Okay. Yeah. चलो बेटा आ जाते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, बोलो। क्लियर है। याद रहेगा ना। अब बेटा आप इधर पे आ जाइए, इधर पे आ जाइए, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नॉन पोलर क्यों लिखा था समझा क्या, दोनों का इक्वली शेड रहेगा, यहाँ पे भी क्या रहेगा बोलो बेटा, इक्वली शेड। यहाँ पर भी क्या रहेगा बोलो, बोलो ना, दोनों सेम सेम है ना, इक्वली शेड। यहाँ पर भी क्या होगा बोलो, अब ये कार्बन और हाइड्रोजन है बेटा, आप बोलोगे सर इसमें तो होना चाहिए था, दो अलग अलग लोग हैं, सॉरी सॉरी सॉरी। बेटा अगर मैं हूँ यहाँ पे एक ऐसा, मैं यहाँ पे सेंटर में हूँ, एक जन मेरे को यहाँ से पुल कर रहा है, एक जन मेरे को यहाँ से पुल कर रहा है, एक जन मेरे को ऊपर से कर रहा है, एक जन नीचे से कर। मीथेन ऐसा ही है ना बेटा, देख रहा है, लेकिन ये पुल करने वाला क्या है, सेम है। यहाँ से भी मुझे सेम सेम पुल कर रहा है, ऊपर और नीचे भी सेम। तो मेरा कुछ नेट मूवमेंट होगा क्या, नहीं, तो मेरे पे ओवरऑल फोर्स विल बी व्हाट, बैलेंस, राइट। समझ में आ गया। देयरफॉर मीथेन इज व्हाट, नॉन पोलर। अच्छा आपको पता है बेटा, सुनो ना, आपको पता है क्या बेटा, ये जो कार्बन और क्लोरीन में, क्लोरीन बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि नहीं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ए भाटिया काय चाललंय, हा काय हातमध्ये दाखव मला, क्या है हाथ में तेरे, फोन है, छुपा रहा है फोन। अच्छा ए सुन भाटिया बेटा, मैं कार्बन हुए भाई, सुनेगा क्या, यहाँ से मेरे को क्लोरीन पुल कर रहा है, यहाँ से भी मुझे क्लोरीन पुल कर रहा है, ऊपर और नीचे से भी क्लोरीन पुल कर रहा है, तो मेरा नेट कुछ होगा क्या बोल। हाँ तो नॉन पोलर, अब समझ में आ गया। अच्छा बेस्ट तो अपने ने पढ़ लिया है, पोलर होने के लिए खाली क्या होना चाहिए बोलो बेटा, हेडफोन, बस। क्लियर। ओके। आ चाहिए भैया। वेरी गुड, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दैट, वेरी गुड, अरे एक नंबर, कम ऑन, वेरी नाइस क्वेश्चन। ना बेटा, आप बोलोगे सर आपने बोला यहां से पुल करेगा यहां से पुल करेगा तो सेम होना चाहिए कि नहीं, राइट। तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन में भी यहां से कर रहा है तो सेम होना चाहिए ना, लेट मी टेल यू बेटा, हाइड्रोजन का ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। हाइड्रोजन का बेटा आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे 11th 12th में, हाइड्रोजन ऐसा होता है बेटा, वी शेप होता है। कैसा होता है, वी शेप। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर, तो नेट यहाँ पर आएगा बेटा, वेक्टर सम हम लोग निकालते हैं। ये हम 11th 12th में पढ़ाते हैं, आपको जानने की जरूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है, लेकिन इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ले और फिर भी बेटा तेरे को ट्रिक तो दिया है ना बेटा, हेडफोन कॉल मतलब, क्लियर है। ए यहाँ पे अभी पोलार काय को लिखा समझ में आया। यहाँ पे पोलार क्यों लिखा है, अमोनिया में ऑल्सो, अमोनिया का भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है बेटा, आप हायर स्टैंडर्ड में, कोई ओलंपियाड ओलंपियाड दे रहा है क्या कोई कुछ ऐसा कुछ, हाँ। तो अच्छा, तो बेटा ये ना, ये आपको ऐसे स्ट्रक्चर आपको कब समझेगा बेटा, ये हाइब्रिडाइजेशन पे होता है, किसने वर्ड सुना है एसपीडीएफ ऐसा, तो ये एसपी, हाँ तो बोथ वाटर एंड इसमें ना ये होता है बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड ड्यू टू लोन पेयर ज्योमेट्री चेंजेस, ये सब आपको जानने किसने सुना है हाइब्रिडाइजेशन ऐसा कभी, उल्टा, हाँ। हाँ लेकिन ऐसा, ए भाई सुन सुन, ऐसा कोई तुमको पूछने वाला नहीं है,
लेकिन ऐसे में तुमको, ऐसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आप लोगों को ऐसा कुछ आएगा ना बेटा, तो हम तुमको बचाची, ऐसे यार, नोबडी विल आस्क दिस। ये देखो बेटा, ये बेटा मैं 11वीं में पढ़ाता हूँ ऐसा बेटा। ये देखो एच में ऐसा होता है, एस एस ऐसा सिंगल कोलन बॉन्ड, ये पी ऑर्बिटल ऐसे होते हैं, डम्बल बम्बल। मार मत देना किसी के सिर पे डंबल। नो नो, ऐसा नहीं है भाई अभी का। ए सुन, ये देखो बेटा, ये मीथेन तुम्हारा ऐसा होता है एसपी। अभी मैं तुमको जो वाटर का बताना चाहता था ना, ये वाटर, ए अमोनिया का बेटा, ये देख रहा है ऐसा, ये लोन पेयर होता है और ऐसा थ्री, तो देखिए ऐसा पिरामिडल शेप होता है। एंड वाटर मॉलिक्यूल इज लाइक दिस बेटा, टू टू लोन पेयर ना बेटा, तो शेप देख कैसा हो गया वाटर का, ऐसा वी शेप्ड होता है, देख रहा है ये वी शेप, राइट, वी शेप देखना है ये, और तू लोन पेयर है कि नहीं बेटा। ओके, ये हाइब्रिडाइजेशन वो सब अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, आप लोग बेटा अभी सब कुछ है ना सुपरफिशियल लेवल पे पढ़ रहे हो, अभी मैं इतना बता देता आपको। 9th 10th में आप जो पढ़ रहे हो ना सुपरफिशियल लेवल पे, हाँ वो बाद में देखना, वो रंगोली बाद में देख। एनीवेज चलो बेटा, आ जाते हैं। सुन लो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, बोलो ना। अंडरस्टूड, सब अच्छे से आ गया, क्लियर है। यस बेटा, अब बेटा है ना, आप लोग एक चीज तो भूल ही गए बेटा, क्या भूल गए, ये हम लोग ने ये जो लिखा है इससे रिलेटेड कुछ मैं चीजें बताने वाला हूं आप लोगों को। अभी यहाँ पे बेटा नीचे क्या लिखा है देखो ना, ऑक्सीडेशन एंड, अच्छा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए व्हाट इज द बेस्ट ट्रिक, अर्जुन बेटा बेस्ट ट्रिक कौन सा है। ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग क्या लिखते थे, लियो, याद आ रहा है कि नहीं। बट ये बेस्ट ट्रिक नहीं होता है बेटा, लियो मीन्स व्हाट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ए इधर पे देख शौर्य बेटा, जर्मनी, जर्मनी मतलब क्या होता था बोलो बेटा, जी फॉर गे, ई फॉर इलेक्ट, इज। लेकिन बेटा ना बहुत बार क्या होता है, एग्जामिनर व्हाट दे डू ना, रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड में माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी लिख सकता है, प्रोडक्ट साइड में अगर लेके जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे लिखा है तो प्रोडक्ट साइड में जाके वो क्या बन जाता है, माइनस। तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखना होता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन राइट हैंड साइड में प्लस लिखा रहता था, आपको क्या लग रहा है कि वो गेन कर रहा है, तो उसके लिए बेस्ट ट्रिक क्या था, बोका, व्हाट वाज द बेस्ट ट्रिक आई गेव यू। नहीं वो नहीं, भूल गए आप, नहीं आप भूल गए, भूल गए सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। हाँ क्या क्या बोला, बोल त्रिशा। अरे एक नंबर, ये देखो यहाँ पे है ना, पहले ऐसा नंबर लाइन बनाएगा, 0 +1 +2 +3, हियर व्हाट इज राइट, -1 -2 माइनस। ए ऑक्सीडेशन में क्या होता है बेटा, अगर मैं रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में जाएगा, अगर इफ आई गो ऑन दिस साइड मींस चार्ज इंक्रीजेस, देन इट इज oxidation, what it is, oxidation, and if charge decreases then what it is, if I go in this direction then it will be what। तो मैं खाली क्या चाहता आप लोग है ना, क्या करोगे अभी, ये नोट्स है ना आपको, जो यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिख रहा है ऊपर, पहला लियो जर्मनी लिख दो, और ये वाला डायग्राम नीचे जगह है वहां पे बना दो थोड़ा, नंबर लाइन बनाया ना वो, अब मैं आपको बताता, भूतानी तू आंसर करेगा अभी सब, ध्यान देता नहीं है, बातें कर रहा है यहाँ पे कंटिन्यूअसली। ए शिवन लिखना शुगैन, Why did you bring that? या ये झिंगा लिखने का इधर पे। सॉरी, ये केमिकल बॉन्डिंग है ना। हाँ, अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये क्यों करने का है, आप बोलोगे सर ये केमिकल बॉन्डिंग में कहां से आ गया, तो हम बच्चा थी, सब बच्चा थी, बच्चा थी। बीबी जो लिखू नहीं, एच यू, जाने दे अभी, सब यहाँ पे एग्जाम्पल है, ये राह याद रहेगा ना। चलो बेटा, क्लियर, डन डन डन। ओके नाउ बेटा इन एग्जाम, शौर्य बेटा दे आर गोइंग टू आस्क यू व्हाट, राइट आयोनिक रिएक्शन, क्या बोलेंगे लिखने के लिए, राइट आयोनिक रिएक्शन, वो मैं तुमको बताते। अभी बेटा आपको ना ये याद रखना है बेटा, इंक्रीज डिक्रीज लिख लिया,
सबका हो गया, बोलो ना, बोलो ना। Oh, Diane is going to come in next batch. Hey, who is this? Let me. Oh, Meher, beta, you are there? Na, beta. Hello, dear. Yes, sir, I'm here. Okay, yeah, very good, beta. Please write all these things. Okay. Anyways, done, done, done. Shruti, beta. Oh, Shruti. Now, what in exam I'll ask you? Don't write anything. Okay. Now, exam में beta, they will ask you this type of reaction. Fe2 plus gives you Fe3 plus इलेक्ट्रॉन। तो चलो बेटा, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है? बोलो श्रुति। लॉस है बेटा। मैं आपको बता देता, यही तो मैं कहना चाहता था, ये झिंगा क्या रे। देख, मैंने तुमको कभी भी क्या बोला, ये रिएक्टेंट साइड है, देखो यहां पर देखने का और यहां पर देखने का, यहाँ पे चार्ज कितना था। मैंने पर्पसली, ये एक्चुअली दिस इक्वेशन वाज लाइक दिस, ये माइनस इलेक्ट्रॉन होके ये क्या बन जाता था, बोलो बेटा। तो इसलिए कभी भी आप ये इलेक्ट्रॉन एग्जामिनर लेफ्ट और राइट में करेगा तो यू विल गेट कंफ्यूज्ड, यू विल गेट व्हाट। तो बेटा व्हाट वी हैव टू सी, यू हैव टू ऑलवेज सी द चार्ज, ये चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो नंबर लाइन में आई एम गोइंग ऑन द राइट हैंड साइड, सो इट इज विच रिएक्शन, वो ऑक्सीडेशन। व्हाट इट इज, वो ऑक्सीडेशन। सपोज बेटा मैंने अगर ऐसा लिखा है 1 यहाँ पे और ऐसा लिखा है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है या गेन है। आपको यहाँ पर देख के लॉस लगेगा, लेकिन ये एक्चुअल में ऐसा नहीं था बेटा, ये गेन था। मैथ्स होता है बेटा, मैथ्स में पता है ना, हम लोग इक्वल टू के इस तरफ लाते हैं तो बेटा क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है कि नहीं। इसलिए बेटा आप वो लियो जर्मनी से याद रखोगे तो आप बहुत बार रॉन्ग हो सकते हो। अगर आपको अप्लाई लियो जर्मनी कहाँ पे अप्लाई करना होता है, ओनली ऑन द रिएक्टेंट साइड, हाँ लेफ्ट हैंड साइड, वेरी गुड बेटा। तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, शनाया क्या हो रहा है, ये जीरो से क्या हो रहा है बेबी, बोलो। माइनस हो रहा है। सर फर्स्ट वाला रिडक्शन नहीं होगा? कौन सा, कैसा होगा अभी, झिंगे अभी तक क्या कर रहा था यहाँ पे। अरे अबे चार्ज डिक्रीज हुआ ना। या तो 2 प्लस से तो इंक्रीज हुआ तो क्या होता है, इंक्रीज इन चार्ज। अरे बेटा इंक्रीज इन चार्ज इज व्हाट, ऑक्सीडेशन। भूल गया बेटा, अब भी ड्रॉ करवाया ना, राइट। क्लियर है बेटा, आर्यन बेटा, आर यू हाँ गेटिंग यस क्लियर। सर। या या एंड हियर जीरो से -1 हो रहा है, तो बेटा मैं अभी यहाँ पे कहाँ पे जा रहा हूँ, ये वाले में देखना। हाँ चलो बेटा, बच्चा है तू मेरा, चलेगा। ओके चलो बेटा, ए बोका, ठीक है ना बेटा। चलो, हैव यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, बोलो ऑल ऑफ यू। इसमें आप कभी रॉन्ग नहीं जाओगे। श्रुति बेटा विल ऑलवेज सी द चार्ज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट। इफ इट इंक्रीजेस देन इट इज व्हाट, ऑफ, एंड इफ इट डिक्रीजेस देन व्हाट इट विल बी। बेटा तेरा नाम क्या है, अद्वैत के बाजू में, शौर्य के बाजू में। हाँ? अर्नव, अर्नव शिंदे। ओके चलो बेटा अभी आ जाते हैं, ए बस ये आपको अभी दिमाग में रहना चाहिए, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये व्हाट मैन भूतानी, इधर आ अभी। अभी बेटा अगर आप ये देखोगे ना बेटा, आपके पीछे ये ना, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आपके काफी जगह है बेटा, पूरा गांव बस सकता है, पूरी कॉलोनी कॉलोनी सब आ जाएगा, कॉन्टिनेंट भी आ सकता है। अभी पहला लेट मी राइट देन यू विल राइट। ओके बिकॉज है ना, आपको दो, मैं आपको मैं बता देता, डोंट राइट अभी एनीथिंग ना। एग्जाम में आपको कैसा क्वेश्चन आएगा, हेलो। ओके यहां पर मैं लिख रहा हूं, राइट आयोनिक रिएक्शंस। याद आ रहा है हम लोग ने 9th में भी ऐसा किया था, आयोनिक रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ, कंजूसी में लिखना, ऑफ NaCl। दूसरा में आपको क्या दूंगा पता है क्या, यहाँ पे राइट आयोनिक रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ CaO। एग्जाम में वो लोग लेकिन बेटा आपको कैसे देंगे, एलिमेंट के बदले X और Y देंगे बेटा, समझा। लिखने तो नहीं, पहला बेटा अगर Na होता था, Na याद आ रहा है कि नहीं, Na एटॉमिक नंबर कितना होता था, 11 2 8 1। तो बेटा आयनिक रिएक्शन का मतलब व्हाट Na विल डू, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, इट विल फॉर्म व्हाट Na
1 प्लस, बरोबर है। फिर क्लोरीन क्या करता था बोलो बेटा, क्लोरीन एटॉमिक नंबर वाज हाउ मच बेटा, 70। तो 287। फिर क्या लिखने का, गेन 1 इलेक्ट्रॉन, क्या बन जाता था, Cl1। फिर थर्ड स्टेप में क्या होता था, Na+ और Cl- आमने सामने आके क्या बन जाएगा, NaCl। अच्छा, अभी आपको एग्जाम में ये भी पूछेगा, ए भाई ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, तो क्या करोगे बताओ। यहाँ पे क्या था, चार जीरो, यहाँ पे क्या बन गया, +1। कृष्णन बेटा द चार्ज has increased, so which reaction, वो oxidation। Here what has happened beta, from 0 it has become what, -1, so it is what, रिडक्शन। अच्छा बेटा, कभी कभी एमसीक्यू में भी ये भी आएगा, एक बॉन्ड, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड बना के नहीं Na और Cl के बीच में, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, क्या क्या हो रहा है बोलो बेटा, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी। तो कभी कभी आपको ऐसा भी पूछ सकते हैं, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन is which reaction? Ionic bond formation is redox reaction. क्लियर बोलो, रिडॉक्स क्यों बोला, फिशा क्यों बोला, दोनों हो रेला है। तो अभी यहाँ पे बताइए ना मुझे, यहाँ पर कैल्शियम क्या करेंगे, तो कैल्शियम कितना होता था, 20। 288, -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Ca, विच रिएक्शन इट इज, ऑक्सीडेशन। चलो बेटा, आप अभी कभी समझ गए ना, आपको इतना सब लिखना है, चलो स्टार्ट हो जाओ। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर इज 8, 2,6। it gains 2 electron and it becomes O2-, and what you will, which reaction it is। अच्छा, एग्जाम में मैं Na की जगह पे क्या देख सकता हूँ, X हैविंग एटॉमिक नंबर 11, Y हैविंग एटॉमिक नंबर 17, राइट देयर आयनिक रिएक्शन, विल यू बी एबल टू राइट, क्या नो बे, ये भूटिया तू कुछ लिख नहीं रहा लगता है, भूटिया को बोल रहा हूँ मैं। और वो भी लिखना बाजू में, अगर मैंने एग्जाम में बोला दिविजय, अगर मैंने एग्जाम में बोला आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन इज विच रिएक्शन, और ऑप्शन में मैंने दिया है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, तो तेरा आंसर क्या होगा, रिडॉक्स। ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो। मस्त, मैं एकदम रंगोली कर रहा हूँ यहाँ पे, अरे यार ये तो शे, जाने दे, इसका नहीं करता। हाँ, नो रंगोली, नो दिवाली, नो प्राइजेस। क्या नहीं, वहां पे सिर्फ अपने को, फिर मेरे को व्हाइट कलर का यूज करना पड़ेगा रंगोली में। ओनली क्रीम ऑफ ओरियो बिस्किट। चलो बेटा, आएगा ना ये, अर्णव बेटा, आर यू गेटिंग व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे, आयनिक रिएक्शन इफ दे टेल यू टू, यू विल बी एबल टू राइट इट और नॉट, टेल मी। ओके, अब बेटा हम लोग है ना, इसके बाद जो पढ़ने वाले हैं ना, वो बोर्ड में एवरी अल्टरनेट ईयर एक में से दो, दो स्ट्रक्चर उसमें से एक 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 आता ही है, समझा क्या। हाँ, ये भाई झिंगुर काय रे, फोन बोन हाथ में लेके बैठा है क्या तू। हाँ। सारा बेटा, सारा का सारा आ रहा है कि नहीं। आपको परेशानी हो रही होगी ना बेटा। ये आर्या तनीषा किधर है, नेक्स्ट तो तुम लोग का दुश्मनी हो गया क्या दोनों का, तो फिर अच्छा ऐसा है क्या, पार्टी चेंज कर दिया तूने। हम्म। चलो बेटा आजा, वो झाड़ू वाला है भाई।
आम आदमी पार्टी। बस बस, नो पॉलिटिक्स, चलो। We can't vote. I would say. Can't vote. We can't vote now. We can influence on अरे पता है भाई ए बस। चलो बेटा, डन 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 डनी तो। Oh baby, have you not written the important thing, beta? This is a very important thing. Importanto. You forgot to write the importanto thing. This is this is the end. Mira, see? चलो, क्लियर। अच्छा बेटा, थोड़ा है ना नोट्स में कहाँ कहाँ है ना प्रिंटिंग एरर हुआ होगा, तो आपको जहां पे भी ऐसा लगे ना तो मुझे बता देना बेटा, ठीक है ना। स्पेशली ना एमसीक्यू में कभी कभी क्या हो जाता है पता है क्या, वो एबीसीडी में वो एरर होता है, हाँ बेटा। और जो लास्ट का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है ना बेटा मिसलिनियस, वहां पे ना थोड़ा कहाँ पर या एरर होगा तो मुझे बता देना, तो विल करेक्ट इट। चलो बेटा आ जाते हैं। हेलो हेलो, बस बस बस। I hope all of you have done this. Now this is very very important thing beta which we are going to do right now. Chalo, shall I erase this? All of you, have you all written this part? This part is very very important. Done done. अच्छा, एग्जाम में क्या करेंगे वो लोग, ऐसा सोडियम नहीं देंगे, वहां पे एक्स लिखेंगे, ओके, नॉन मेटल के लिए वाई लिखेंगे, उसका एटॉमिक नंबर देंगे, तो विल यू बी एबल टू राइट इट? देन यू विल राइट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई ओनली, एलिमेंट मत बना देना, खाली उसका एटॉमिक नंबर लिख के आपको आ जाएगा कितना लूज होने वाला कितना गेन। ए हो गया ना, अरे मैंने इरेज कर दिया था, हो गया। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा बेटा, उससे पहले मैं आपको बता देता, देखो भी आज हम लोग ने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड इन विच द इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड इक्वली, व्हाट इज द टर्म। अगर मैंने यहाँ पे अनइक्वली लिखा रहता तो आपका क्या आ जाता आंसर? वेरी गुड। फिर बेटा इधर पे आ जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर डू नॉट टेक फॉर्मली इन केमिकल रिएक्शन और बॉन्ड फॉर्मेशन, क्लियर है? हे, अब इधर पे आ जाने का बेटा, अब मैं यहां पर कुछ लिख रहा हूं, गौर से देखो बेटा। ए सुनो ना, अगर मैंने ऐसा लिया, अमोनिया को मैं पानी में डालूंगा तो क्या मिलेगा बोलो? अमोनियम। अच्छा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में दो चीजें हैं, क्या है बेटा? अगर ये डिसोसिएट हो सकता है तो क्या बनेगा बोलो? अमोनियम। और यहाँ पे क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड। तो इसको क्या बोलते हैं? अमोनियम। और ये क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सिल आयन। ये अमोनियम आयन है ना बेटा, और ये वाला क्या है तेरा बोलो? हाइड्रोक्साइड। या आयंस का नाम होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन, और क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल। तो बेटा अभी आपको एग्जामिनर कितना शाना है वो देख, क्या पूछेगा क्वेश्चन। When ammonia is dissolved in water, draw the diagram of the positive ion form. तो पॉजिटिव कौन है बोलो? बोलो ना। अच्छा, कभी कभी आपको क्या पूछ सकता है, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द नेगेटिव आयन फॉर्म। ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछेगा, ड्रॉ डायग्राम ऑफ अमोनियम, घुमा के पूछेगा। ड्रॉ डायग्राम ऑफ हाइड्रोक्साइड नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा? When ammonia is dissolved in water, draw the diagram of the positive ion form, और when ammonia is dissolved in water। ए भाई, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वैसा सुनो, मैं बताई तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल एप्लीकेशन में ऐसा वो लोग घुमाते हैं। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द नेगेटिव आयन फॉर्म व्हेन अमोनिया इज डिसॉल्व इन वाटर, तो आपको किसका डायग्राम बनाने का है? हाइड्रोक्साइड। अब इधर आ जा, भूतानी। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वन वन वन, और ऊपर मास भी वन। तो हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है बोलो बेटा? एक प्रोटॉन होता है, और एक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने हाइड्रोजन में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बेटा, इसको मैंने निकाल दिया, ठीक है, तो क्या बचेगा बोलो बेटा? खाली प्रोटॉन ही बचेगा ना, ए न्यूट्रॉन होता ही नहीं है हाइड्रोजन में। तो पहले ऑर्बिट में अभी कुछ है क्या बेटा?
तो ये इसको क्या मैं बोलूंगा, H प्लस चार्ज आ जाएगा कि नहीं, बोलो इसमें। अच्छा, इसको दूसरा नाम, हाइड्रोजन आयन को मैं दूसरा नाम क्या बोल सकता हूँ, प्रोटॉन बोल सकता हूँ कि नहीं, बोलो। ये अर्णव बेटा इकड़े बाग प्रोटॉन बोल सकते कि नहीं? व्हाट, प्लीज काइंडली यूज वॉशरूम बेटा। ओके, ओके, या ओके, अश्लेषा जी यहाँ पर आइए जी। यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे बेटा, प्रोटॉन। ये प्रोटॉन, हाइड H प्लस को प्रोटॉन हम लोग बोल सकते हैं कि नहीं, बोलो ना। ओके, इतना समझा। चलो, ए भूतानी, इसको स्टेबल होने के लिए भी पहले ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन जा सकता है मैक्सिमम? तो इसको, प्रोटॉन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, बोलो। रिक्वायर्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्स हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? अब बेटा यहाँ पर देख, मैं कुछ कर रहा हूँ। हाँ, वेरी गुड बेटा, इसने पूछा H प्लस को हम लोग प्रोटॉन क्यों बोलते हैं। अच्छा, मेरे को बता, हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था। अब इलेक्ट्रॉन चला गया तो बचा सिर्फ क्या, ए लिसन, प्रोटॉन, इसलिए इसको प्रोटॉन कहते हैं। समझा गया? ओके। ए वहां पे मत देख, वहां पे कुछ नहीं समझेगा युवान बेटा, यहाँ पे देख। सो लेकिन इलेक्ट्रॉन तो वो लेता है ना। हाँ तो बताते ना, अभी इसी इसका इसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसका प्रोटॉन नाम क्यों गिरा वो समझा क्या? हाँ, अभी इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। आर्या बेटा, अब तक हम लोग ने क्या पढ़ा बताओ? अगर ए एक इलेक्ट्रॉन लेके आता था तो बी भी क्या करता था, एक इलेक्ट्रॉन लेके आता था, फिर दोनों जन शेयर करते थे। याद आ रहा है कि नहीं? और क्या बनता था, नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड क्या बनता था? बेटा अगर आपने देखा रहेगा, H एक इलेक्ट्रॉन लाता था, ये एक इलेक्ट्रॉन लाता था, तो आपको सिंगल ऐसा बनता था। या आपने देखा रहेगा, ऑक्सीजन कितना ला रहा था, 2, तो दूसरा वाला ऑक्सीजन भी कितना लाता था, 2, दोनों जन इक्वली ला रहे हैं ना, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बनता था। क्या बनता था, नॉर्मल। लेकिन अब बेटा यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, देखो ना बेटा, अमोनिया। इसके अंदर बेटा मैंने H प्लस डाला तो क्या बन जाएगा, बोलो आर्या बेटा, NH3, और ये प्रोटॉन है ना बेटा, तो क्या बन जाएगा, बोलो, अमोनियम। और इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ये तो न्यूट्रल था ना, इसका ये पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा कि नहीं, बोलो। अमोनियम आया, अमोनियम आया। इज दिस क्लियर? अच्छा बेटा, आर्या बेटा, आज हम लोग ने पढ़ा था अमोनिया, हम लोग ने जो बनाया था, तो आपने, आपको पता है बेटा ये ऐसा होता था अमोनिया, आज हमने बनाया था ना। और इस पे क्या होता था, बोलो। लॉन पैर क्या होता था? लॉन पैर, ये देख इधर भी है बोकैन। अब बेटा यहाँ पर जाए बेटा, ये कौन है, प्रोटॉन। प्रोटॉन को स्टेबल वे- Biological word. बेटा डोंट फोर्स मी टू यूज बायोलॉजिकल वर्ड्स। ये ले रहा है सब ये। Please, those 4 boys there, please there, don't try to be adventurous in the class. ठीक है ना बेटा? हाँ। अच्छा, ये बेटा भी ये H प्लस इधर पे जाएगा, सुनो बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्या बेटा, नाउ दिस वाज हैविंग लोन पेयर, ये प्रोटॉन को स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, बोलो बेटा। अब क्या हो रहा है, ए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना बेटा, बोर्ड में आएगा ये। ट्रांसफर नहीं बटाटी, सुन। अब तक क्या हो रहा था बेटा, हाइड्रोजन एक देता तो ये वाला भी एक देता, तो देख ये 2 देता था तो ये भी 2 देता था, फिर ऐसा बॉन्ड बनता था कि नहीं? अब यहाँ पर क्या होगा, इसको कितना चाहिए बेटा स्टेबल होने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों का दोनों कौन देगा उसको? हाँ, तो लेकिन इसमें तो क्या, आर बोथ द एलिमेंट कंट्रीब्यूटिंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया इसको? ये दोनों इलेक्ट्रॉन यही दे रहा है। तो बेटा जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बंदा देता है तो वो बॉन्ड को हम लोग कैसा बनाते हैं, ऐसे एरो वाला बॉन्ड बनाते हैं। कैसा बॉन्ड बनाते हैं? एरो वाला बॉन्ड, एरो वाला बॉन्ड। ओके। दोनों अगर इक्वली देता था तो क्या होता था, नॉर्मल ऐसा बनता था। अभी सपोज बेटा ए है, ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन, बी ऐसा है, खाली हाथ आ गया। अब दोनों इलेक्ट्रॉन अगर ए दे रहा है शेयरिंग के लिए, तो उसके लिए हम लोग कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, एरो वाला बॉन्ड।
कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? और ये एरो वाले बॉन्ड का नाम क्या होता है? एरो वाले बॉन्ड का नाम क्या होता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। क्या नाम होता है बोलो बेटा? प्लीज कम हियर। ये देखो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को दूसरा नाम क्या होता है? डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड लिख लो वहां पे, डेटिव बॉन्ड। पोलार जैसा नहीं होगा। पोलार में तो क्या हो रहा था? शिफ्ट हो रहा था, ट्रांसफर हो रहा था। यहाँ पे कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, शेयरिंग ही हो रहा है। कहाँ हो रहा है? एरो खाली लिखा है हम लोग ने, बॉन्ड को एरो से बताया। पोलार में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहा था। यहाँ पे शिफ्ट नहीं हो रहा है, शेयर ही हो रहा है। मैं अच्छा, तेरे को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, मेरे पास 2 एक्स्ट्रा था, तो मैं खाली तेरे बाजू में आया, तू भी मेरे बाजू में आया, हम लोग ने शेयर किया है। ठीक है ना बेटा? मैंने ट्रांसफर नहीं किया तेरे को। ठीक है, शेयरिंग ही हो रहा है यहाँ पे। हाँ, but which covalent coordinate? A type of a covalent bond formed by the shared pair of electrons with both electrons coming from same H। अबे ये बॉडी में दिखा, सब डर जाएगी इधर। ठीक है ना? इसमें कैसा होगा? नॉन पोलर पोलर। ठीक है बेटा? बस ए यहाँ पे ध्यान दो तो ए बेटा होता नहीं बरोबर। ठीक है? अच्छा, अभी यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख यहाँ पे देखना, इफ अ कोल एंड बॉन्ड फॉर्म बाय बोथ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विद बोथ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम व्हाट? सेम। ठीक है, उसको क्या कहते हैं बोलो बेटा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। सब बोल बेटा। ओके। दिविजा और है ना शनाया, वो पार्टी करने का था, तो 50 रुपीज शनाया ने लाया, 50 रुपीज दिविजा ने लाया। अब दोनों पार्टी कर रहे हैं, तो दोनों जन इक्वल अमाउंट दे रहे हैं कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अभी एक दूसरे दिन क्या हुआ पता है क्या? 100 रुपीज यही लेके आई, कौन? शनाया। दिविजा कुछ भी पैसा नहीं लेके आई, लेकिन फिर अब दोनों जन फिर से पार्टी कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये बार दोनों का पैसा किसने दे रही है बोलो बेटा? शनाया दे रही थे ना। उसने कुछ लाया था क्या? नहीं। क्लियर है? बट वो दोनों जन पार्टी में दोनों जन क्या करे? शेयर ही करे ना। क्लियर है? बोथ ऑफ देम आर शेयरिंग एट 100 रुपीज। तो इसमें पोलर नॉन पोलर कहां से आएगा बोलो? तीन हाइड्रो वो का 3 हाइड्रोजन, कौन से 3 हाइड्रोजन? कौन सा 3? वो अमोनिया में था, ये अमोनियम है। अमोनिया गया। ठीक है, ये अमोनियम आयन, अमोनियम आयन की बात चल रही है। तो अभी आप मेरे को बताओ यहाँ पर अभी कैसा बॉन्ड बनेगा बोलो? व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन, बेटा अभी आपको मैंने बताया ना बेटा, इफ बोथ ऑफ देम आर गिविंग इक्वल तो इट इज नॉर्मल कोवेलेंट। अच्छा, दूसरा कुछ लाया ही नहीं है, मैं ही दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहा हूँ शेयरिंग के लिए, शेयरिंग के लिए, तो क्या होगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा इधर पे आ जाओ, ये लिखा आप लोग ने। सर एक कंपाउंड में एक ही H प्लस ऐड होता है। हाँ, एक ही ऐड होगा, वो बताता क्यों। पहला मैं आज आपको अमोनिया का बता रहा हूँ, सुने। एग्जाम में बेटा एग्जामिनर बहुत शान है, पहले तेरे को क्या क्वेश्चन पूछेगा बोल बेटा? ये डायरेक्ट पूछेगा क्या, ड्रॉ डायग्राम ऑफ अमोनियम? नहीं, मैं इसको घुमा के कैसे पूछ सकता बता? डॉट, इसको मैं थोड़ा इस तरफ शिफ्ट कर देता हूँ, जगह लिखने के लिए मुझे मिलेगा। हाँ, एग्जाम में मैं ऐसे क्या लिखूंगा? पॉजिटिव आयन फॉर्म्ड, पॉजिटिव आयन फॉर्म व्हेन, व्हेन अमोनिया इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, ऐसा पूछेंगे। लिख लो ब्रैकेट में। किसके यहाँ पे लिखोगे बेटा? अमोनियम वाले के यहाँ पे। वो इसका जान दे, पहले मैं किसका बता रहा हूँ तेरे को? हाइड्रोनियम पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं या किसका डिस्कस कर रहा हूँ मैं किसका डिस्कस कर रहा हूँ? हाँ, तो अमोनिया को पानी में डालेगा, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था क्या बनता था? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनिया पे क्या चार्ज था? तो अभी ये क्या है, अगर अमोनिया को पानी में डालेगा तो कौन सा पॉजिटिव आयन बनेगा बोलो? ओके, चलो बेटा इधर आ जाए। ये लिखा आप लोगों ने, सबसे पहले अमोनियम के आगे लिखना, वो हाइड्रोनियम के आगे मत लिखना। डन डन। प्लीज ये सब इन्फो, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बोर्ड में। सानवी बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। देख अभी मैं इसका डाउट सॉल्व कर देता अर्जुन का। अर्जुन बेटा यहाँ पे देख, तेरा जो डाउट है ना मैं अभी बताता, देख
मैंने अमोनिया को पानी में डाला तो क्या बनता था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें पॉजिटिव आयन कौन था, वही मैंने स्टेटमेंट दिया ना अभी तुझे। अमोनिया को पानी में डालेगा तो नेगेटिव कौन बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। डिसोसिएट को बाद में मैं बताऊंगा, पहले तू यहाँ पे देखो आयन फॉर्म में ही होता है, सोल्यूशन में आयन फॉर्म ही रहता है, डिसोसिएट ही होता है तो। लेकिन अभी ये सुन, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इधर देख बेटा, युवान बेटा, ये अमोनिया था। अच्छा से अमोनिया में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना था, 2,5। तो ये ब्लैक वाले इलेक्ट्रॉन किसके हैं? बोलो। क्या शाइन को क्या देखते रहे तुम लोग, ठीक है ना? हाँ, ये शाइन, अरे सॉरी ये क्या था, शाइन वाले नहीं। ये क्या रे, ये कैसा करता है तुम लोग, अच्छा 5 इलेक्ट्रॉन, ये किसका है? बस, बस, शराब, बेटा बस ऐसे, नो टाइम पास नाउ बे, श्योर बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, अरे शाइन बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, चलो आ जाओ। 5 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ना, ये भूतानी और तुम लोग दोनों ही आंसर देने वाले हो, सुन। ये कितना था बोलो बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं? अच्छा, अभी हाइड्रोजन यहाँ पर क्या कर रहा है अपना, हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन ही था, देख नाइट्रोजन भी एक दे रहा है, हाइड्रोजन भी एक दे रहा है कि नहीं? ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं? ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन भी एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है कि नहीं, बोलो। तो ये देखना इसमें इक्वल, तो ये कैसा बॉन्ड बना, नॉर्मल बॉन्ड बना, नॉर्मल। अब देख बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये H प्लस को बेटा कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2। अच्छा, ये कुछ भी इलेक्ट्रॉन ला रहा है क्या बेटा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको कौन देगा, ये वाला। दिख रहा है बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिया, देखना इसको ये ऐसा मतलब शेयरिंग के लिए देगा, शेयरिंग के लिए। क्यों, क्योंकि अमोनियम बन रहा है ना, और प्रोटॉन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, मैंने पानी, अमोनिया और पानी को मिक्स किया तब ये होगा, इसके लिए, क्योंकि वो बनता कैसे अमोनियम वो बताने का है। तब दोनों इलेक्ट्रॉन, अभी यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बंदा दे रहा है या दोनों जन मिलके दे रहे हैं? हाँ, तो एक ही बंदा दे रहा है, इसलिए कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, क्या क्या क्लियर है? अच्छा, एग्जाम में ये डायग्राम आता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या क्या मिस्टेक करते हैं, पहले तो ये ना, ये ऊपर का ये पॉजिटिव चार्ज डालना भूल जाते हैं। फिर और एक इंपॉर्टेंट है, ये एरो वाला बॉन्ड होगा, बाकी सब क्या होगा, नॉर्मल बॉन्ड। क्लियर तो है? बोलो। इसमें डॉट डॉट और क्रॉस दोनों हो सकता है ना, एन में भी मतलब। तो बनाया है ना पूरा, ये देखा, पहले अमोनिया था, H प्लस के साथ रिएक्ट किया, अमोनियम बनाया, फिर ये नहीं डॉट एंड मतलब क्रॉस बनाया, फिर ये बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया, बोलो। ऐसा कुछ जरूरी है कि नॉन मेटल में डॉट होता है और इसमें मेटल में क्रॉस या कुछ? ऐसा कोई जरूरी नहीं है उबे, ये यहाँ पर देख, यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल था तो डॉट एंड क्रॉस है कि नहीं, बोल। हम्म। ठीक है। ओके। ओके, अलग अलग एलिमेंट होगा तो डॉट एंड क्रॉस बनाते हैं, बस इतना याद रखने का। क्लियर है? हाँ अरे सर। नाइट्रोजन हाइड्रोजन आर डिफरेंट ना बेटा, डिफरेंट में डॉट एंड यस क्रॉस यस। आया है। बट गॉट इट अभी ये गॉट इट। दोनों सेम था तो देख, दोनों में डॉट ही आया कि नहीं? हाँ। ओके, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें बेटा ये अमोनिया में लोन पेयर में पूछता तो अमोनिया में हमनी लोन पेयर इज देयर, क्या, लोन पेयर। वन। बट अगर मैंने पूछा अमोनियम आयन में हमनी लोन पेयर, हाँ ये एग्जाम में आता है, एमसीक्यू मेन, अमोनियम आयन हमनी लोन पेयर आर देयर 0 1 2 3 4 ऐसा दिया रहेगा तो आपका आंसर क्या होगा, 0। अब इधर पे आ जाते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, एवरी ईयर 2 मार्क फुकट आपको आएगा ही। एवरी ईयर एग्जाम में या तो अमोनियम का डायग्राम पूछते हैं या तो हाइड्रोनियम का। अब बेटा मैं आ जाता हूँ हाइड्रोनियम का, इधर देखे अर्जुन, तेरे को था ना हाइड्रोनियम। आपको पता है बेटा एग्जामिनर में इसमें कैसा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, इधर देखो। ये बेटा अगर मैंने कोई भी एसिड को पानी में डाला तो क्या बनना चाहिए, तुम बताओ मुझे। एसिड के अंदर क्या होता है बोलो बेटा, H प्लस होता है कि नहीं, बोलो। ऐसे मैं एग्जांपल देता हूँ, H प्लस और पानी मिक्स होके क्या बन जाएगा, बोलो बेटा, हाइड्रोनियम। ये पॉजिटिव इस पे जाके चिपक जाएगा कि नहीं, बोलो। हाइड्रो, क्लियर है? अभी एग्जामिनर आपको ये घुमा के कैसे क्वेश्चन पूछेगा, बोलो बेटा। डायरेक्ट ऐसा पूछेगा क्या, ड्रॉ डायग्राम ऑफ हाइड्रोनियम में, आप पूछ सकता है। अगर मेरे को घुमाने का रहेगा ये क्वेश्चन को तो मैं कैसा घुमाऊंगा, बोलो। पॉजिटिव आयन, हाइड्रोनियम पॉजिटिव था ना झिंगे, पॉजिटिव आयन फॉर्म व्हेन, क्या लिखोगे, अरे वहां पे बेस लिखा था ना, यहाँ पे क्या होगा, व्हेन एसिड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, लिख ले बेबी।
और आप दिखा सकते हो कैसे एसिड डिसॉल्वेंट? अबे झिंगे, अभी बता रहा था तो क्या कर रहा था तू? तुझे अरे अब सर, बताता हूँ, समझ सब बताता हूँ, समझ शांति रख, शांति रख, बताता। पहले ये लिखने दे इनको, मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। अमोनिया क्या होता है बोल बेटा? बेस है कि नहीं? पूरे सिलेबस में एक ही बेसिक गैस था कि नहीं? बोलो बेटा। हाँ सर। अमोनिया। तो अमोनिया को पानी में डालेंगे तो क्या बनता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में अमोनियम पॉजिटिव है कि नहीं? बोलो बेटा। हाँ हाँ। तो वही तो यहाँ पे लिखा था मैंने, अमोनिया डिजोल्व इन वाटर। नहीं नहीं, हाँ। हाइड्रोनियम वाला नहीं समझा। हाँ तो बता रहा हूँ ना, रुक जाना, वो तो अभी मैंने बताया ही नहीं है ना बेटा। ठीक है ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़े। ओके। ए भाई इधर देख। अच्छा चल, मैं तेरे को यहाँ पे ही बता देता हाइड्रोनियम का। अच्छा बेटा, एसिड क्या है? HCl एसिड है कि नहीं? बोलो आर्यन बेटा। यस सर। अगर मैंने इसको पानी में डाला तो तेरे हिसाब से क्या बनेगा? एसिड में H+ होता है और ये Cl-, ये H+ इसके पास चला जाएगा, क्या बनेगा बोल? H3O। और बचेगा क्या? Cl-। अब समझा बेटा? हाँ समझा। अच्छा, अब ये हाइड्रोनियम कैसे बनता है वो हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर उसका। ठीक है कृष्णन बेटा, वी डिड वाटर फॉर्मेशन और नॉट? टेल मी हियर। ना वाटर में बेटा फर्स्ट मैंने क्या लिया है? देखो ये वाटर लिया है। वाटर में ऑक्सीजन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? बोलो। 6। 1 2 3 4 5 6। हाउ मेनी हाइड्रोजन वे आर देयर बेटा? 2। कैन यू सी दिस ब्लू इज? नाउ टेल मी बेटा, हियर बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर गिविंग इक्वल। एक किसका है? ऑक्सीजन का। और एक किसका है? हाइड्रोजन का। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? नॉर्मल कोवेलेंट। यहाँ पे भी क्या बनेगा? ओके, अभी इसके पास कितने लोन पेयर है? अच्छा, ये प्रोटॉन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? प्रोटॉन एक भी इलेक्ट्रॉन देने वाला है क्या शौर्य बेटा? नहीं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए कौन देगा? कौन देगा बोका? कौन देगा? ऑक्सीजन। कौन देगा? श्रुति बेटा, दोनों कौन देगा? ऑक्सीजन। तो देखिए अभी ये वाला बॉन्ड देखिए, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन, ये वाला जो मैं बता रहा हूं, दोनों किसने दिया? ऑक्सीजन ने दिया। हाइड्रोजन ने कुछ दिया क्या शेयरिंग के लिए? नहीं। तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा बोलो बेटा? एरो वाला बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? एरो वाला बॉन्ड। अच्छा सानवी बेटा, अभी तू बोलेगी सर ये अभी देख इसमें डायग्राम में ये प्लस बनेगा, अब ये समझ में आया? सानवी तू बोलेगी सर यहाँ पे और एक लोन पेयर है, तो ये और एक ऐसा बॉन्ड बनाना चाहिए कि नहीं? बोलो। तो और एक बॉन्ड बनाना चाहिए तो उसके बाजू में कौन आना चाहिए? और एक H+ आना चाहिए कि नहीं? राइट ना भुट्टा? दिस इज वेरी गुड। नाउ टेल मी बेटा, बट वो नहीं बनाएगा भुट्टा, दिमाग लगा के बता क्यों नहीं बनाएगा? और एक ये H+ इसके पास नहीं आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? एक मिनट रुक जा, क्यों नहीं आ सकता है बता? नहीं तो लोन पेयर तो यही था, लोन पेयर तो इसने बनाया ना बॉन्ड। ठीक है, और एक लोन पेयर है तो। अच्छा बोल बेटा, आ रहा हो, क्यों नहीं आ सकता? हाँ तो। हाँ बरोबर है, तू बोल बरोबर है। वेरी गुड, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपल। अब समझ में आया? ओके। हाँ, एक पहली बार आ सकता था क्योंकि ये न्यूट्रल था। अब ये हाइड्रोनियम बनने आने के बाद ये वापस लोन पेयर दे पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? अच्छा बेटा एग्जाम। नहीं, ये तो खाली मैंने आपको बच्चे क्वेश्चन पूछ। नेगेटिव नेगेटिव बात ब्रो। नेगेटिव रहेगा तो बेटा यहाँ पर नेगेटिव तो ऑलरेडी उस पे इलेक्ट्रॉन पेयर होता था ना बेटा, तो नेगेटिव सपोज ऐसा कोई होता है क्लोराइड। ठीक है ना बेटा, तो ऑलरेडी इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, तो ये इसको ले ही नहीं सकता है ना। चल बेटा, अभी मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हाइड्रोनियम आयन हैज हाउ मेनी लोन पेयर? बट वाटर हैज हाउ मेनी लोन पेयर? बोलो। अमोनिया हैज हाउ मेनी लोन पेयर? बट अमोनियम आयन हैज हाउ मेनी लोन पेयर? क्लियर है बेटा? अच्छा फिर से यहाँ पे लिख देता, ये हाइड्रोनियम लिखा ना आप, चाहिए तो लिख लो बेटा, 1 लोन पेयर ऊपर दिया हुआ है फिर भी लिख दे। 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर। व्हाट नो ब्रेक? नो नो। नो नो। अच्छा चलो चलो बेटा, नहीं नहीं, एक एक खाली लास्ट मेरे को करवाने दो ना, फिर मैं दूंगा, बस मैं दूंगा 5 मिनट का ब्रेक दूंगा, बोला ना। आई गिव बेटा, आई गिव। हाँ हाँ वॉशरूम बेटा, 1 मिनट रुक जा बस बेटा, खाली एक। मैं ब्रेक दूंगा बेटा, डोंट वरी, लुक लुक।
अब बेटा ये अमोनियम बन गया। अब ये समझा बेटा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा ही, आएगा ही। क्लियर है? अब बेटा आपको एग्जाम में पूछेंगे एक ऐसा कंपाउंड बताओ जिसमें सब बॉन्ड है, सब मतलब कोवेलेंट भी है, कोऑर्डिनेट भी है और आयोनिक भी है। तो बेटा इधर पे एकदम नीचे देखो बेटा, ये आपको पता है अमोनियम क्लोराइड हम लोग लिखते हैं, अमोनियम क्लोराइड या इन्हीं अमोनियम सॉल्ट। तो अमोनियम पे क्या होगा बोलो बेटा? प्लस। सीएल पे क्या होगा? अच्छा अभी आप लोग को बताइए, अमोनियम आज हमने बनाया कि नहीं? अमोनियम में ये पॉजिटिव और ये क्लोराइड नेगेटिव है कि नहीं? ओके अश्लेषा बेटा, ये नॉर्मल वाला बॉन्ड था तो ये कौन सा था? नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड था। ये एरो वाला बॉन्ड को हम लोग क्या कहते थे बोलो बेटा? अच्छा ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? क्लियर है? ओके। ऐसा पूछेगी एमसीक्यू में, नहीं अमंग द फॉलोइंग विच कंपाउंड हैज ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड, तो आंसर क्या होगा? एनी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट। क्लियर है? ओके। एनी अमोनियम सॉल्ट लिखा है ना, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम। क्लियर? पोलर किधर है? पोलार वोलार नहीं होगा, अमोनियम तो पोलार तो खाली एक इसमें होता है ना बेटा। ओके या मेहर बेटा, व्हाट हैपेंड डियर? सर ये इसका डायग्राम है ये हाँ, तो ये डायग्राम ही अबे, ये देख बेटा, आगे, तू मतलब। इसलिए बोला ना ऑनलाइन मत किया करो, ऑफलाइन आए। देखिए अमोनियम बनाया कि नहीं मैंने, इसके बाजू हाँ, में मैंने क्लोराइड लाया बस। तो ये ठीक पूरा है? बनाना पड़ेगा ना? हाँ, ये पूरा बनाना पड़ेगा या सिर्फ नहीं ये लास्ट वाला? बनाने को नहीं बोलेगे बेटा, ये बनाने के लिए नहीं बोलेगे बेटा, ठीक है ना बेटा? हेलो। ओके सर। हाँ एमसीक्यू में पूछेंगे, ठीक है ना बेटा? ओके। एनी डिफिकल्ट डिटेल यार? अच्छा अभी बेटा एक खाली बस ये पार्ट करवाता हूँ फिर मैं ब्रेक देता हूँ, सुनो। ए अभी तू ही बता मेरे को आर्यन बेटा, मैं और एक चीज तेरे को पूछ सकता था। हम्म। अच्छा अभी तू ये यहाँ पे बता, देख अमोनियम को मैंने अरे किधर गया वो अपना, मैंने इरेज कर दिया। अच्छा अमोनिया को पानी में डालते, अमोनिया गैस को पानी में डालेंगे तो क्या बना था? अमोनियम। तो पॉजिटिव आयन कौन बना था बोलो? NH4। हाँ लेकिन अगर मैंने एग्जाम में पूछा ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द नेगेटिव आयन फॉर्म व्हेन अमोनिया इज डिसॉल्व इन वाटर, तो नेगेटिव आयन कौन है? हाइड्रोक्साइड। हाँ तो अभी हम लोग का लास्ट में हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम क्या होता था? हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल। क्या होता था बोलो बेटा? हाइड्रोक्स। हाइड्रोक्सिल। आइए, आ जाइए, इधर पे आ जाइए, ये देखो बेटा। तो अभी यहाँ पे आप क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सिल आयन जो है उसके बाजू में क्या लिखोगे? फॉर्मेशन, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, फॉर्मेशन क्या है? नेगेटिव आयन फॉर्म, नेगेटिव आयन फॉर्म व्हेन अमोनिया, अमोनिया के अलावा मैं क्या लिख सकता था? कोई भी बेस भी लिख सकता था। बेस मतलब NaOH, NaOH को पानी में डालेंगे तो नेगेटिव आयन कौन बनेगा? OH माइनस। इज डिजॉल्व इन वाटर, इज डिजॉल्व इन, लिख लो। तो लोग डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड कभी नहीं पूछेंगे, कभी कभी ऐसा घुमा के भी पूछ सकते हैं। जगह बना ना बेटा, इधर पूरा ये क्या है? हाँ तो ऐसा लिख ले, ऐसा लिख ले, इसमें ऐसा बना दे बाजू में। क्लियर है? What type of question they will always do? They will play with the words in exam. समझ में आ गया ना? ऐसा वो लोग नहीं बोलेगा हाइड्रोक्साइड आयन बनाओ, क्या बोलेगा? नेगेटिव आयन फॉर्म एंड अमोनिया इज डिसॉल्व इन वाटर और बेस इज डिसॉल्व इन वाटर। क्लियर? एनी डिफिकल्ट डिटेल हियर? चलो, क्या बोलता हीरो? आया ना अभी सब? हाँ चले भाई। ये पानी था कि नहीं? पानी पानी पानी, दिस इज वाटर और नॉट, टेल मी। अच्छा अभी वाटर में से मैं क्या निकालूंगा? एक एच को खाली निकालूंगा, पॉजिटिव एच। तो उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस पे छोड़ दिया कि नहीं? देखो बेटा, तो इसलिए इस पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? बस हो गया, कितना इजी था ये। अरे वाटर था ना, वाटर में से एच चला गया, लेकिन एच ने अपना इलेक्ट्रॉन किस पे छोड़ दिया? ओ पे। तो क्यों छोड़ तो दी? वापस एक्सप्लेन कर तो सकते लेकिन हो? छोड़ा क्यों वो? अरे छोड़ा नहीं, ये तो हम बना रहे हैं ना बेटा। अरे एक बेटा ये सर हम ये हाँ बोलो। वापस एक्सप्लेन कर सकते हो? ओके, नाउ यू टेल मी बेटा, वी डिड वाटर और नॉट, टेल मी। राइट? या So now from water, if we are not छोड़ा नहीं, we are removing one H plus. So if I remove, I am removing only H. I am removing only
तो what will happen? H खाली, and this electron H will leave on O. Why? Because O is highly electronegative. ठीक है बेटा? So what you will get बेटा? This way you will get or not? Tell me. So it will develop with charge negative, and H has, we have removed H plus. Okay बेटा Meher, now have you understood? Yeah. Yeah. Clear है? तो नाउ आई एम गिविंग यू ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स. मेरे को रिमाइंड करना, वापस ये मुझे रिकॉर्डिंग्स कंटिन्यू करना है. Sir, Okay, now welcome back after the break, beta. We are going to do this very important part now. What type of question they will ask, in this, beta. First, no distinguish is there. Then, beta, few give reason. Maximum give reason. Maximum give reason will come from this part. Maximum give reason. बेटा युवान बेटा बस हो गया, अभी बस हो गया. हाँ मतलब ध्यान दे, हाँ ध्यान दे ऐसा. ओके, ए इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में विच पार्टिकल्स आर देयर. देखो Na प्लस था, Cl क्या था, माइनस. सो व्हाट आर हेल्ड टुगेदर, बोलो बेटा. विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड. एंड पूछेंगे व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. तो व्हाट इज द आंसर, बोलो. आयंस. आयंस. अच्छा, अगर मैंने आपको एक डब्बा भर के क्लोरीन दिया है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो उसमें क्या होता है, बोलो. क्लोरीन ही होता है ना. तो ये क्या है, मॉलिक्यूल है कि नहीं, मॉलिक्यूल है ना बेटा. तो व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स. व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स. ओके, नाउ आयनिक कंपाउंड बेटा. अच्छा, इनके बीच में क्या हो, अच्छा नॉर्मली नमक आप देखा बेटा कौन से स्टेट में होता है, शियोन. किसके स्टेट में होता है, बोलो बेटा, सॉलिड फॉर्म में. So ionic compounds are generally strong solid. Why they are strong solid? Because ions are held together by strong electrostatic force of attraction. Give reason why they are crystalline, hard, solid. Strong forces of attraction between ions. Strong forces of attraction between ions. एक कोवलेंट कंपाउंड आप लोग ने देखा है जनरली, वो क्या बाद में वो पढ़, समझा कि नहीं. क्लोरीन कौन से फॉर्म में होता है, बोका, गैस. ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में होता है, गैस. वाटर कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड. तो जनरली कोवलेंट कंपाउंड आर गैस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड. गिव रीजन. तो अच्छा बेटा, जो इनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, सरफेस फोर्स. सरफेस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, वैंडरवाल फोर्स. ओके, तो दे आर वीक वैंडरवाल फोर्सेस बिटवीन होम, मॉलिक्यूल्स. तो पहला गिव रीजन आपको एग्जाम में क्या आएगा बेटा, वाई क्रिस्टलाइन आयनिक कंपाउंड आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड. वाई, तो व्हाट विल से, बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस. ओके, फिर आपको पूछेंगे कोवलेंट कंपाउंड में बेटा, वाई दे आर वीक गैसेस, लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड. देन व्हाट विल से बेटा, वीक वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स. फिर आपको ये भी पूछेंगे व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन आयनिक बॉन्ड. तो आप क्या बोलोगे, आयंस. और कोवलेंट कंपाउंड में व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स. अच्छा बेटा, अभी है ना बॉइलिंग पॉइंट, जो भी सब्सटेंस जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, वो का व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई वी कॉल देम एज नॉन वोलेटाइल. क्या बोलते हैं, ओके. व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस, तो वी कॉल देम एज व्हाट बेटा, वोलेटाइल. वी कॉल देम एज व्हाट बेटा, वोलेटाइल. क्लियर है. अच्छा, अभी आप मुझे बताओ बेटा, किसका बॉइलिंग पॉइंट, जनरली इफ आई टेक NaCl, NaCl, नमक है, नमक आसानी से बॉईल होगा क्या, नहीं. आसानी से मेल्ट होगा क्या, नहीं. वाई, गिव रीजन वाई आयनिक कंपाउंड आर व्हाट बेटा, नॉन वोलेटाइल. दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट. क्लियर. Yes. So what will be the answer? Strong electrostatic force of attraction between the ions. Hence they require more energy. Clear है, right? अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड बेटा, अगर आप लोगों ने देखा रहेगा, लड़कियों आप लोगों ने वो नेल पॉलिश रिमूवर यूज किया होगा, एसीटोन, वो कोवलेंट कंपाउंड होता है. क्या होता है, ओके. फिर बॉयज, अगर आप लोग ने वो आफ्टर शेव कभी देखा रहेगा, राइट बेटा, या पेट्रोल डीजल अगर हाथ में लोगे तो इवापरेट हो जाता है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉलेटाइल. क्या कहते हैं. तो गिव रीजन व्हाई कोवलेंट कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो आंसर एक ही लिखना पड़ेगा, क्या, दे आर वीक फोर्सेस. तो आप हीट करोगे तो फोर्स उसका बीच में का क्या हो जाएगा, ब्रेक इजिली, ब्रेक्स इजिली. ओके बेटा, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आप लोगों को ब्रेक नहीं मिलेगा. मैंने आपको बोला था स्ट्रिक्टली 5 to 7 मिनट्स, आप लोग ने फिर ऑलमोस्ट 17 मिनट्स ले लिया बेटा. ठीक है, ओके. नेक्स्ट पॉइंट, अभी जो अभी आए ना, सुन लो बेटा. पहला MC, ओके.
इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड, ओके ठीक है। बस बस बस, अभी अभी बस इधर आ जा। कृष्णा बेटा, तो वही मैं, अच्छा ए फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, they will ask you in electrovalent compound which particles are there, then what will be your answer? Ions. In covalent compound बेटा, look, if I take NaCl, there are ions or not? Tell me. अच्छा, in covalent, suppose I have given you bag full of chlorine, so they have what? Chlorine molecules. So which particles are there? अच्छा, नमक बेटा, NaCl is in solid form. Why? Give reason why they are solid. Strong forces of attraction between ions. What are covalent compound? बोलो बेटा, why they are covalent compound? Chlorine, they are generally gas, liquid or weak solid. Why? Because they are weak van der Waals forces. Now what is this van der Waals forces बेटा? I'll tell you. Look, these are the surface forces. अच्छा, ये दो क्लोरीन है, इनके बीच में ऐसा सरफेस फोर्स डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? सरफेस फोर्स। तो उसको हम लोग वीक वैन डर वाल्स, एंड दीज आर वीक फोर्स। ओके, सरफेस फोर्स डेवलप होता है बेटा। Okay. Now, generally, electrovalent compound, they will ask you why they have high melting point, boiling point, and why they are non-volatile, strong electrostatic force of attraction between them. अच्छा, weak, if non-volatile है या low Q, again same thing, weak van der Waals forces, so less energy. If the force of attraction is less, but I have to apply less energy to separate them, right? Okay. Ionic compound are good conductor only in which form? Molten or fused. For any compound to conduct electricity, it should have what? Free ions. It should have what? अगर मैंने सॉलिड NaCl बोला, मैंने आपको नमक दिया, अंदर दो वायर लगाओगे बल्ब, तो बल्ब जलेगा क्या? खाली NaCl में नहीं, बिकॉज इट इज इन सॉलिड फॉर्म, नो फ्री आयंस। ओके, सो आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ओनली इन विच फॉर्म? मोल्टन, फ्यूज्ड और विच फॉर्म? एक्वेस, बट नॉट इन सॉलिड, नॉट इन सॉलिड स्टेट। व्हाई? इन सॉलिड बेटा स्ट्रॉन्ग फोर्स एंड आयंस आर फिक्स्ड, बट इन मोल्टन स्टेट और एक्वेस स्टेट आयंस आर फ्री। ये कोवलेंट कंपाउंड क्या होगा जनरली? non-polar covalent compound are bad conductor, but exception है polar, polar covalent are good conductor, polar covalent are, क्यों रे? क्योंकि बेटा अभी हम लोग ने पढ़ा था, अच्छा ये मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है बोलो बेटा? मॉलिक्यूल है, लेकिन आपने HCl को पानी में डाला तो क्या बनेगा? फ्री आयंस। क्या बनेगा? हाँ, तो वाई पोलर का कोवलेंट कंपाउंड आर गुड कंडक्टर? बिकॉज बोलो इन एक्वस स्टेट दे आयनाइजेस टू प्रोड्यूस फ्री आयंस, टू प्रोड्यूस। ओके, नमक किस में डिसॉल्व हो जाता है बोलो बेटा? पानी में। जनरली आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। व्हाई? बिकॉज वाटर हैज हाई, व्हाट इज दिस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा? इफ आई पुट NaCl इन वाटर, तो Na प्लस बनता है और Cl माइनस बनेगा कि नहीं? और इसको कौन सराउंड कर देगा बेटा? वाटर विल सराउंड इट, वाटर विल सराउंड इट। वाटर का कौन सा एंड? ऑक्सीजन इज नेगेटिव ना बेटा, वाटर इसको सराउंड करेगा। Cl को कौन सराउंड करेगा? हाइड्रोजन। कौन सराउंड करेगा? तो अब मेरे को बताओ, क्या Na प्लस Cl माइनस को देख पाएगा? तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू एंटर बिटवीन द टू आयंस एंड सेपरेट देम इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, इज नोन एज, and water has the highest dielectric constant, therefore it is a universal solvent. Ionic compound, it has a capacity to weaken the strong force of attraction, right, resulting into free ions. अच्छा, ये ऑयल पानी में डिजोल्व होगा क्या? तो जनरली बेटा कोवलेंट कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट दे आर सॉल्युबल इन व्हाट? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑयल ऑयल में डिजोल्व होता है, राइट बेटा? ओके, लेकिन ये एक्सेप्शन, पोलार कोवेलेंट डिजोल्व होगा कि नहीं वाटर में? बोलो HCl पोलार है कि नहीं? बोलो बेटा अमोनिया भी पोलार है कि नहीं? इसको पानी में डालेंगे तो बेटा वो क्या हो जाता है? आयनाइज हो जाता है कि नहीं? बोलो बेटा, राइट ना बेटा? क्लियर है? अच्छा, अभी ये लास्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आई वांट यू टू राइट हियर दिस। अच्छा, ये NaCl था बेटा, NaCl में ऑलरेडी क्या था बोलो? आयंस था कि नहीं? ओके, इसको मैं पानी में डालूंगा तो ये आयंस क्या हो जाते हैं? सेपरेट। क्या हो जाते हैं? तो डिसोसिएशन मींस वन आयनिक कंपाउंड अंडरगो व्हाट? सेपरेशन ऑफ आयंस व्हिच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अरे ये आयनिक कंपाउंड था कि नहीं? बोलो बेटा। और और इसने क्या बनाया? आयंस। क्या बनाया? अच्छा, कोवलेंट कंपाउंड में क्या HCl को आयन है क्या? नहीं ना बेटा, क्या है ये? मॉलिक्यूल। वाटर भी क्या है बोलो बेटा? मॉलिक्यूल। अच्छा, HCl को अगर पानी में डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बोलो, बोलो ना। आयंस। क्या मिला? तो अच्छा, यहाँ पे आयंस ऑलरेडी थे क्या? इसमें ऑलरेडी थे क्या रिएक्टेंट में? वो का ऑलरेडी थे क्या रिएक्टेंट में? नहीं।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स विच आर नॉट आयोनिक इज नोन एज आयन। देख ये आयनिक था क्या बेटा, नहीं ना, अभी आयंस बना ना, बोलो। और यहाँ पे ऑलरेडी आयंस थे बेटा विच आर सेपरेटेड। कोल एंड कंपाउंड अंडर को विच प्रोसेस, एमसीक्यू में देंगे तो क्या लिखोगे, कोल एंड कंपाउंड आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रोल एंड कंपाउंड अंडर को विच प्रोसेस, बोलो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन है New ion. ये, which were not already there in the molecule, right? Ions from covalent compound, ठीक है। यहाँ पे तो आयंस ऑलरेडी वेर प्रेजेंट ना, दे आर जस्ट सेपरेटेड। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द टर्म यूज फॉर सेपरेशन ऑफ आयंस, फॉर्मेशन ऑफ आयन। हाँ, तो ये सब यहाँ पे गिव रीजन हमने दिया है, देखो ना, ये देखो, सॉरी टर्म्स दिया है बेटा, देखो फॉर्मेशन ऑफ आयंस फ्रॉम मॉलिक्यूल्स, ओके, सेपरेशन ऑफ आयंस, ये सब मैंने आपको बता दिया। आयनिक कंपाउंड वाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, कोवलेंट कंपाउंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा कभी भी बेटा ऐसा पढ़ा गया ना डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी तो क्या लिखने का, दे डू नॉट हैव फ्री आयंस। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पूछेगे तो क्या बोलने का, दे हैव फ्री आयन। गिव रीजन व्हाई कोवलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन गैस, तो दे हैव वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वीक वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है बेटा। अच्छा बेटा आज मैंने ये बताया था ना HCl इज पोलर, तो देख बेटा दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन टग ऑफ वॉर होगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां पे शिफ्ट हो गया, तो इट डेवलप विद चार्ज पार्शियल नेगेटिव एंड दिस विल डेवलप विद चार्ज पार्शियल पॉजिटिव। तो बेटा ऑल दिस गिव रीजंस आई हैव गिवन टू यू ऑल। नाउ बेटा सुन लो अभी आपको क्या करना है। अभी बेटा अगेन आई टोल्ड यू पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चंस कौन से फॉर्म में आता है, कंबाइंड फॉर्म। आज अभी आप लोग घर पे जाके आपको सबसे पहले क्या करना है, ये फर्स्ट पेज पे जितनी भी डायग्राम है फर्स्ट पेज पे एज इट इज आपको पूरा बना के लेके आना है। नेक्स्ट क्लास में जो लेके नहीं आएगा उसको 10 बार मैं लिखने को दूंगा यहाँ पे क्लास में। सुन लो अच्छी तरह से, होमवर्क इज ये जो फर्स्ट पेज पे जितने भी डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर है यू विल मेक एज इट इज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। या लास्ट वाला भी बना देना, अमोनियम क्लोराइड भी बना देना, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट विल डू, यू विल गो होम टुडे एंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू, लिसन केयरफुली। मैंने आपको बोर्ड बुकलेट दिया उसमें से पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चन आंसर्स पूरे रीड करना। आई हैव गिवन ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर। फिर उसके पीछे एमसीक्यूज है पीरियोडिक टेबल एंड, so that MCQ you will try to do on your next class whenever you will come beta। Now you will not bring this periodic table और ये वाला notes लाना नहीं है। Every class whenever you will come you have to bring this book because we'll discuss, I'll discuss the some important question and your doubts and difficulty from this and MCQs also I'm going to do and I'm going to check whether you have done those MCQs or not। और कोई भी MCQ में प्रॉब्लम आएगा तो उसको सर्कल करके रखना। I'll discuss that in the class। क्लियर है। तो बेटा with this we have completed first two chapter। next class I am going to start new chapter organic chemistry। yes। हाँ, which one? no no मैं खाली ना टेस्ट उसके नेक्स्ट वीक में लूंगा because I want to discuss your doubts and difficulty of periodic table and chemical। ठीक है, चलो then bye bye everybody।